ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೀಸಲಾತಿನ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ 4% ಮೀಸಲಾತಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. By cancelling the or abolishing the reservation that was given to Muslims under 2B category, BJP actually played a trick on the whole Bahujan Samaj. It's an attack on the constitution, because whatever they were given, the reservation, it was 100% according to the constitutional provisions. But our Chief Minister, Mr. Bommai, has said that Muslims are given on the basis of religion. Constitution has never given the reservation either on the base of reservation, on the base of religion, or on the base of economic criteria. Reservation has been given purely on the basis of social and economic educational backwardness. Even economic backwardness is also not constitutional one. But the government has given reservation of 10% to the economically weaker sections. That itself is anti-constitutional. But whatever the Muslims were enjoying, it was 100% according to the constitution. By cancelling the reservation that was given to the Muslims, it's a direct attack on the constitution. By this move, we are seeing that it is a beginning on the attack on the constitution, and it will not end with the cancellation of reservation to the Muslims. Actually, their target is scheduled caste, scheduled tribes and OBCs. As it is, most of the government sectors have been privatized. See, as it is, most of the government companies, institutions, factories, everything has been privatized, and there is no reservation in the private sector. You know very well. But now they are also cancelling the reservation whatever there in the government sector for the Muslims. And SC STs, they are not able to get a reservation in private sector, and whatever they have provision in the government sector, they are also not getting. So ultimately, all the Bahujan Samaj, they will be deprived of their rights. Now they are saying that we are taking of the reservation, but we will give you the accommodation in EWS. When the Muslims are having separate quota, even after that they are not getting it. They are not getting the due. Then how can they get their due under the EWS quota, where many other upper caste people are there? So it's a havoc on the constitution, and it's a clear-cut attack on the constitution. So we strongly oppose this, and we are insisting the government to not to cancel it, and they should revoke their order immediately. No chance now, sir, because it's code of conduct and the government doesn't have executive powers. See, but we want to tell our people the real face of the BJP, so that they can give the reply in the elections. So whatever the next government comes, they should be aware of it. They should be cautioned. Sir, you said it's a kind of attack on the constitution. Yes. But the BJP people and RSS people, they openly say we have come here to change the constitution and bring Hindu Rashtra. Yeah, this is the beginning of that. The first step towards that. Because the constitution says that India is not a Hindu country or a Christian country or a Muslim country. It's India, and India is a secular country. It is beyond our caste, religion, everything. It's a democratic country, it's a secular country, and it's a 100% country for everyone. Everyone should live here. It's the India of the Indians. No, sir, the question is, the simple question is that you say it's an attack on constitution. Yes. But they are openly saying we have come here to change the constitution, to bring Manusmriti, to make it a Hindu Rashtra. Then there is no point in contesting your questions. Now the thing is, we are not educating or we are not requesting the BJP to change their colors. We know that that is their original color. But how did the BJP people come to the power? It's because of we people voted them. So we are not understanding it properly. If the Bahujan Samaj understands it properly, what is the meaning of changing the constitution and what is the real color of the BJP, then they will decide. Because you have given them power, they are speaking all this nonsense.
If we understand changing the constitution means destroying our lives, destroying the constitutional values, if we understand this, then definitely we can teach the lesson to the BJP. जहाँ तक बीएसपी की बात आती है, बीएसपी का मैनिफेस्टो जो है, आज तक जितने भी चुनाव आप देखें, उसका मैनिफेस्टो जो है वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने वाली बात कही जाती है। और हम लोग अगर इतिहास हिस्ट्री में देखें, जितने भी आपको आईएएस आईपीएस मिलेंगे वो यूपी से ही मिलेंगे। और इसके अलावा ये जो 4% रिजर्वेशन वाली बात चल रही है, हकीकत में हमारा डिमांड ऐसा है, मुसलमानों की जितनी आबादी है, यानी कि पॉपुलेशन का परसेंटेज जितना है, यानी कि 14 हो 15 हो चाहे जितना भी हो, वो उतनी पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना है, यानी कि रिजर्वेशन मिलना है। अब जब हम लोगों ने ये डिमांड किया तो इस डिमांड को, रिजर्वेशन को बढ़ाने के बिना, उसको बढ़ाए बगैर ये जो है 4% दिया गया रिजर्वेशन है, इसको भी छीनने की साजिशें, कोशिशें चलती हैं। ये सिर्फ इसलिए है, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जिस कम्युनिटी के पास पॉलिटिकल पावर्स नहीं होता उसके ऊपर जुल्म अक्सर हुआ करते हैं। तो ऐसा आज पॉलिटिकल पावर्स से बहुत दूर रहने वाली कम्युनिटी अगर कोई है तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और रिलीजियस माइनॉरिटीज में, जिसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम्स भी आते हैं। ठीक उसी तरह से ओबीसी कैटेगरी के काफ़ी सारे ऐसे छोटी छोटी जात के लोग हैं जिनका आज तक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं मिला। तो इन लोगों को इकट्ठा करते हुए हकीकी इस मुल्क के दस्तूर, संविधान में जिस चीज़ की मान्यता दी गई, यानी कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पर जो कहा गया है, तो उस एतबार से हर कम्युनिटी को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन दिलाने की हमारी मांग है। और जो हुकूमत की जानिब से जो 4% रिजर्वेशन को छीना गया, एक बहुत बड़ी बात आपके माध्यम से मुझे बताना है, जिस IAS ऑफिसर का सिग्नेचर होता है, हमने RTA की जानिब से उस दिन वो जो IAS ऑफिसर ने जिस सर्कुलर पर साइन किया है नोटिफिकेशन पर, वो उस दिन छुट्टी पर रहता है। वो छुट्टी पर है मगर फिर भी उसका सिग्नेचर होता है। इसका मतलब क्या है? तो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की ये जो साजिश है वो कांग्रेस की और बीजेपी की भी जो है, तो इसको लोगों को, आवाम को अवेयर करते हुए आने वाले इस इलेक्शन में जो आपके फेवर में नहीं खड़ा, यानी कि कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, हिजाब का मामला हो, हलाल का मामला हो, आज भी हम लोग देखते हैं सवेरे फजर की नमाज में जो है जोर से आज़ान नहीं दी जा रही है। ऐसे काफ़ी सारे मामले हैं जिस पर खामोशी इख्तियार करने का मतलब जो है बीजेपी की करता धरताओं को कांग्रेस की चुप्पी उसको साथ देने का काम कर रही है। इसको मुसलमानों को सख्त ज़रूरत है समझने की। इलेक्शन डिक्लेयर होने के सिर्फ 2 दिन पहले ये सिर्फ पब्लिक को ब्रेन वॉश करने का काम किया जाता है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के हिसाब से ये जो किया गया ये सरासर नाइंसाफी है। ऐसा हमारा मुतालबा इलेक्शन कमीशन के साथ है। इलेक्शन कमीशन ये पिछले 2 दिन में जो किया गया उसको रद्द करने की पावर्स रखते हैं, तो उस पावर्स को रखते हुए और इन फ्यूचर इलेक्शन में कहीं भी बीजेपी अगर इस रिजर्वेशन को रखकर चुनाव अगर लड़ती है तो ऐसी सूरत में जो है इलेक्शन कमीशन को पावर्स है कि वहां के अभ्यर्थी को भी कैंसिल कर सके। और हमारा मुतालबा है कि इसको स्क्रैप किया जाए और 4% जो है अगली हुकूमत आने तक इस 4% को फिर से नाफिज किया जाए इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। कमजोर है, ना बुज़दिल है, ना किसी का मोहताज है, बस अल्लाह हम सब के साथ है। ये काम हमारी कौम के, हमारे कौम के रहबर रहनुमा, सबसे पहले मुसलमानों के जो बड़े लीडर्स हैं, अमीर शरीयत, ये जो सबसे पहले आवाज़ उठाना चाहिए था। मुसलमानों के हक के लिए अमीर शरीयत आवाज़ उठाना था। ये पॉलिटिशियन किसी के काम नहीं आ सकती। जो हमारे रहनुमा असम्बली में बैठे हुए जो मुसलमान MLA जो भी है, कोई मुसलमान के हक के लिए बात नहीं करे। ये खुद उनके मुफाद के लिए जी रहे हैं पॉलिटिशियन। आज के दौर के अंदर मुसलमानों को जो हर चीज़ें छीन रहे हैं लोग, हुकूमत लोग, कौन जिम्मेदार इसका? असम्बली के अंदर कौन बात करेगा? जब बात करने वाला था एक ही आदमी था इस हिंदुस्तान के अंदर, जो वो आदमी है जो असदुद्दीन ओवैसी है। पार्लियामेंट के अंदर हो या असम्बली के अंदर हो, जो ये बिल पास होने से पहले बिल भी फाड़ देता था असदुद्दीन। आज के दौर में जो हमारे MLA है, ज़मीर अहमद खान है, जो बहुत सारे हैं,
जो मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, असेंबली में वो लोग बात करना चाहिए था। मैं बम्बई सर को बोलता हूँ, बम्बई को सीएम बम्बई देव जब था परेड में, अभी वो मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करके है, मगर ये मुसलमानों के साथ जो सरासर जुल्म हो रहा है सरासर गलत है। मुसलमानों के लिए अल्लाह की मदद हमारे साथ है, हम किसी के आजिज नहीं है। जो हमारा परसेंटेज को और बढ़ा कर देना चाहिए था और कट करना नहीं चाहिए था। इसीलिए हम सब जो भी मिलकर एक आवाज़ उठा रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम सब की आवाज़ जो पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचे, जो हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म के जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक नज़र से देखना चाहिए। मगर ये सब सरासर गलत है, मगर बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है देश के अंदर। ये हिंदुस्तान के अंदर क्या इंटरनेशनल भी जाएगी ये न्यूज़ देख दिखा करके। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय हिंदुस्तान।